Okay, so welcome you both, Rahul and Sachin. Are you ready, Sachin and Rahul? Hello, can you hear me? Rahul and Sachin. Okay, there's a message. Okay, Sachin, can you hear me? You can also message like Rahul as well. Should we get started? Where is Sachin? Is that my voice is audible, Rahul? Can you tell me? Okay, okay, let's go, let's go. Okay, all right. So this is the course. The course name is Orientation to the Advanced Soil. This is the title, by the way. Today is the orientation class. The course name I keep is Advanced Soil course. Uh, this is gonna to be very interesting, and I assure you, and I can guarantee, if you'll go through with this course, you will ace the soil science definitely. So let's get started. This course, this is very beautiful. It took lots of hard work to build this kind of PPTs and all. I hope you will enjoy a lot this course. Okay, let's move forward. So this is the second page. Before we gonna start, there is a famous quote I wrote here. Uh, that's mean is that famous quote is a year from now you will wish you had start today. Start today. A year from now you will never be sure about the result, but you can certainly be sure if you not start today. It is simple mean that if you do not start today, after 1 year you'll be sure about the regret if you'll not start today. Otherwise, we had a wish today, like before 1 year, like we could start that time, but we did not. So today is the regret. Same regret would be the after 1 year. So to escape the regret, we can start today. So this famous quote is taken from somewhere, and it's good to start, right? So there is a third phase. What is third phase all about? We can discuss. Is that time audible? Rahul, can you hear me? Rahul and Sachin, are you getting my point? Like what I'm saying? This is the all about the orientation class. There is a no teaching and all to do. We'll go through with this PPTs like what you can call this a presentation. Just all about what we're gonna study. Simple as that. Rahul and Sachin, I need your yes. Like, are you guys with me? Give me yes if you are getting it. Like I'm audible. Okay, all right, Rahul. I got your response. Okay, so why you should enroll this course? Like, there should be the question in your mind why we are gonna to invest our time on this course only. Okay, Sachin left. There may be the reason. I think he has a poor connection of the network. Leave it. He may be join again. So Rahul, there can be the question in mind like why only this course you should join? Like there are the several course on the YouTubes and paid coaching institution they have. They are the premium institutions, so you can join that as well. So why this one also? So there is a answer of this your question. There, this course is all about the 3P magic. And what is 3P magic? Let's discuss about that. 3P magic. This course is all about. Okay, someone sending me the request. Let me accept. Okay, just give me a second, Rahul. Okay, again send left. Sachin left. I think something is wrong with Sachin. His network is too poor. Let him join again. I think he sent request again. Ask to unmute. Okay, you can unmute yourself. Okay, Sachin, can you hear me? Hello, Sachin. Yes, sir. Okay, all right, Sachin, just focus on that. Okay. So this course is all about the 3P magic. What is 3P magic? Oh my God. Okay, let me just escape to this. We were there. Okay. What is 3P magic?
This course is all about the 3P magic. What is 3P? The first P stand for 3 pages. Like हम कितना भी पढ़ लें, लाइक हमने 5 पेज पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, 15 पेज पढ़ा, हम उसको 3 पेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना भी बड़ा उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम 3 पेजेस के अंदर। क्वालिटीज बता रहा हूँ इस कोर्स का, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पी स्टैंड फॉर 3 पैराग्राफ्स। कितना भी हमने पढ़ा, 3 पेजेस जो मैं बोल रहा था, हमने 3 पेजेस में कम्बाइन कॉम्प्रेस कर दिया उसको, या फिर 10 पेज की जो 15 पेज की जो चीज थी उसको 3 पेज में, तो हम उस 3 पेजेस को 3 पैराग्राफ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तुमको 3 पैराग्राफ भी ज्यादा लग रहा है कि उसको भी याद करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो हम थर्ड पी जिसके लिए स्टैंड करता है, थर्ड पी दैट स्टैंड फॉर इज दैट थर्ड पी पोटेंशियल, 3 पोटेंशियल वर्ड। व्हाट इज मीनिंग बाई दैट? कि भाई ये 3 पैराग्राफ को हम है ना 3 वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 पोटेंशियल वर्ड। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तुमने कितना भी पढ़ा, 10 से 15 पेज या 20 पेज, वॉट एवर इट इज, ठीक है, उसको हम 3 पेजेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 पेजेस को हम 3 पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3 पैराग्राफ को हम 3 पोटेंशियल वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको इसको याद रखने में आसानी होगी। राइट सचिन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राहुल, Yes, आर sir. यू गेटिंग इट? ओके, ऑल राइट, ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओके, अरे यार वो पीछे रह गया, वहाँ पे एक लाइन हो गया, चलो छोड़ो उसको, दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई कि देर आर द countless courses are available on the YouTube in various institute as well. So why you should join this one also especially? भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ा रखे हैं, यूट्यूब पे इतने लोगों ने पढ़ा रखा है, तो तुमको यही क्यों ज्वाइन करना है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो रन रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी है, तो उनका भी तो फ्री कोर्सेज है, यही वाला कोर्स क्यों? तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के रीजन क्या होने चाहिए तुम्हारे? लाइक रीजन तुम्हारे नहीं, मेरे भी रीजन है, लाइक आई कैन गिव माई रीजन why you should join this course particularly. So first reason is this course offers a condensed overview on all key topics of soil. जितने भी सोइल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। इन encompassing the numerous concept and theories, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज जो है सोइल साइंस की थ्योरीज, वो सब भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, साथ में। इट लीव नथिंग आउट ऑफ कवरिंग एवरी डिटेल इन एवरी शॉर्ट मैनर। जितनी भी डिटेल है, सो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इट कवर एवरीथिंग। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइप में कोर्स बनाया है तो इससे बाहर भी चीजें आ सकती है एग्जामिनेशन के अंदर। इस बात की गारंटी है कि डिटेल में, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे डिटेल वाली चीजें, और सब उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट सचिन? हेलो राहुल एंड सचिन, कैन यू हियर मी? जस्ट आई नीड योर। Yes, sir. ओके ओके, ऑल राइट, यू कैन म्यूट योर सेल्फ, ओके। सो यहाँ पे थे हम कि डिटे डिटेल्स वाली चीजें भी है ना, हम इसमें वो शॉर्टली कवर कर देंगे, ठीक है। इस कोर्स के पर्पस क्यों है, क्यों ज्वाइन करना है, इससे क्या हो। और ऐसा नहीं है कि भाई तुम शॉर्ट में पढ़ा रहे हो तो कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं। ऑथेंटिसिटी, यानी कि बहुत ऑथेंटिक बुक्स जो है, ISSS, AK साहब, रेडी एंड टेडी, और अदर बुक्स जैसे इधर से सोइल ट्रीटाइज हो गया, मतलब सबका मिक्सचर कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पढ़ाने लगे या फिर शॉर्ट में कुछ भी डिजाइन करे, नथिंग। जो तुम एग्जाम एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर डाली हुई है। और ये तुम्हारा 50 से 60% टाइम बचाएगा भाई, 100% श्योर हूँ मैं, आई कैन गारंटी अबाउट इट। अगर तुम इस कोर्स से पढ़े तो तुम्हारा 50 से 60% टाइम है ना बच जाएगा, जो तुम इधर उधर बुक से ढूंढने में इन्वेस्ट करते या फिर जैसे भी। और एट द सेम टाइम दिस कोर्स विल टीच यू that your job is not just remember to information, rather it will guide you through the process of understanding. इस कोर्स का है ना दूसरा पर्पज ये है कि तुमको ये समझाना कि आपके दिमाग का जो काम है ना, योर माइंड वर्क,
your mind job is not remembering the things, remembering the thing। तुम्हारे माइंड का काम है ना चीजों को याद करना नहीं है, तुम्हारे माइंड का काम है चीजों को प्रोसेस करना, समझना चीजों को। कितनी चीजें भर सकते हैं, लाइक हमारी मेमोरी की भी लिमिट है ना, कि इतना सब कुछ याद, इतना ही याद कर सकते हैं। सब कुछ तो याद भी कर नहीं सकते, स्वामी के विवेकानंद तो है नहीं हम। तो इस कोर्स का पर्पज यही है कि आपको रट्टा नहीं करना है चीजों का, मतलब रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को प्रोसेस करना है। ये कोर्स आपको समझा देगा, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट रियलाइज विद द टाइम कि your mind work your mind job is not remembering the things, it's just need to process the things। हमको ऑटोमेटिकली क्लास में ही याद होने लगेगा, हमको ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। सो इस कोर्स की एक क्वालिटी ये भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सचिन? सचिन एंड राहुल। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोस्टली जो कंटेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, मोस्टली कंटेंट जो है वो कहाँ से लिया गया है? द मोस्ट द मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज ड्रिवन फ्रॉम, तो ये लिया गया है ISSS से। फेमस किताब सोइल साइंस की, सबसे फेमस किताब इंडिया के अंदर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस जो हमारा है, वो नहीं है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की बुक जो है ना, ISSS, जिसको ट्रिपल एस भी बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की किताब है, बहुत फेमस किताब है, ऑथेंटिक किताब, सबसे ज्यादा रेफर करते हैं। दूसरा जो बुक है वो है एक के साथ सोइल फिजिक्स का बुक है। वहां से मतलब ये इस वाले पेज का मीनिंग ये है कि जो कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो नोट्स या फिर जो भी हम कुछ पढ़ेंगे, तो वो कहाँ से लिया गया है। तो एक बुक है एक के साथ, एक बुक है ISSS, एक बुक है DK दास इंट्रोडक्शन वाली, और एक है ब्रेडी एंड ब्रेडी, एक TD विश्वास की बुक है, एक ट्रीटाइज है, और मेरे आधे नोट्स भी हैं। ठीक है, तो सब कुछ है ना, इन चीजों का मिक्सर है। मिक्सर का एक अदर वर्ड है, वो भी सिखा देता हूँ, तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी इस कोर्स के साथ। सोइल समझ में आए नहीं आए, पर तुम्हें इंग्लिश जरूर समझ में आने लगेगी। मिक्सर की जगह हम यूज कर सकते हैं अमालमिगेशन। अब स्पेलिंग तुम देख लेना यार क्या होता है। अगर मैं अमालमिगेशन बोलूँ तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है, मिक्सर, क्योंकि मेरा ज्यादा फेमिलियर इसके साथ है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सचिन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिक्सचर और अमालमिगेशन का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाए साथ में। ओके, ऑलराइट। तो बुक्स के नाम याद हो गए? नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ISSS, AK शाह, DK दास, सारी ऑथेंटिक बुक है, वहां से मैंने इसका थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठाया है। ठीक है, चलो अब रोड मैप क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोर्स के अंदर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं तो रोड मैप, वी विल डिवाइड द कोर्स इनटू द 5 मॉड्यूल्स इज कंप्राइजिंग द सीरीज ऑफ सब मॉड्यूल। हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, लाइक फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ। ये कोर्स है ना मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर मॉड्यूल्स भी हमने किसके अंदर डिवाइड करे हुए हैं, सब मॉड्यूल्स के अंदर, राइट। इंट्रोडक्शन उसके अंदर ये आएगा, ये वाला टॉपिक, ये वाला लेक्चर, ये वाला लेक्चर, हम ये सब कुछ कवर करेंगे सब मॉड्यूल्स के अंदर। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे सोइल फिजिक्स, जिसके अंदर टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन, सोइल प्रोफाइल, कंपोनेंट, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, मोर एंड मोर, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इतने सारे टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर हम पढ़ेंगे पेडोलॉजी, मॉड्यूल 3 के अंदर हम पढ़ेंगे सोइल केमिस्ट्री, और मॉड्यूल 4 के अंदर हम पढ़ेंगे सोइल फर्टिलिटी, एंड मॉड्यूल 5 इज ऑल अबाउट द सोइल बायोलॉजी, राइट। तो हम इस कोर्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, रट्टा ही मार रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट सचिन? आर यू विद मी और नो? यस सर। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। रोड मैप हमारा, ये PPT तुमको मैं दे दूंगा ये, ताकि तुमको आइडिया रहे कि ओरिएंटेशन में देखा गया है। चलो, यहाँ पे एक स्लाइड लिखी हुई है इंटरेस्टिंग, दिस कोर्स इज लाइक एशियन पेंट। इस एशियन पेंट, ये कोर्स है ना भाई, ये एशियन पेंट की तरह काम करता है। एक बार घर पे लगा दिया, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। इन केस ऑफ सोइल, इन केस ऑफ सोइल साइंस, ऑफ सोइल साइंस।
दिस कोर्स यू कैन कंपेयर विद द सिंपली एशियन पेंट। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा? एशियन पेंट का भी ये रूल है ना, एक बार लगा दिया तो भाई कितना ही पानी गिरे, बारिश हो सर्दी वगैरह कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इस कोर्स को लगा लिया तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वी आर एलिट क्लास पीपल इन सोइल साइंस। ठीक है। तो ये कोर्स भाई एशियन पेंट के जैसा है, इंटरेस्टिंग थोड़ा फन वे में बनाने के लिए मैंने इसको इसका ऐसा मतलब स्लाइड डाल दिया। ओके। सो अगला क्वेश्चन ये रहा। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई आई एम ऑफरिंग दिस कोर्स। ओ माय गॉड, let me just come to the again previous slide. We were on page number this one. All right. चलो चलो चलो। Why I am offering this course फ्री टू एवरीवन? भाई ये कोर्स फ्री क्यों है? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना कि क्यों मेहनत कर रहा हूँ भाई मैं ये, फालतू में इतना टाइम है क्या मेरे पास? तो आई एम नॉट ऑफरिंग दिस सर्विस फॉर फ्री टू एवरीवन, मतलब ये कोर्स फ्री नहीं है। लाइक एवरीवन एल्स हैव देयर सेल्फी साइड, भाई मेरी भी सेल्फी साइड है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है। तो मेरी सेल्फी साइड ये है, माई प्राइमरी गोल टू डूइंग दिस इज टू रिवाइज द थिंग्स इन अ वे दैट मेक इजियर फॉर मी। भाई अगर मैं तुमको इसको बता रहा हूँ या तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ या फिर चीजें बता रहा हूँ, तो उसका अल्टीमेट पर्पज मेरे लिए भी बेनिफिट ये है कि वो चीजें मुझे याद हो रही है। तो ये कोर्स डिजाइन करने का पर्पज ये भी है, तुम्हारा फायदा तो यही है 100%, उसमें मेरा भी फायदा है कि मुझे चीजें याद होती जा रही है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। एडिशनली अप्रोच हेल्प मी टू बिल्ड एन ऑडियंस एंड एलिवेट माई कम्युनिकेशन स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मेरे लिए एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। इन केस इफ आई अपलोड दीज वीडियोस ऑन द यूट्यूब, so it can create the community for me. There can be the more subscriber, like I can refer these videos as backstage for the reference. And the second thing I can get from this teaching by you is that my communication skills can be the better by teaching you. Right, Sachin? Are you getting my point? Or Rahul? Yes, Okay, so this is the purpose. Like I can be the good at communication. So I wanna be the just I just wanna be the honest with you guys. Like इसमें ऐसा ही नहीं है कि भाई तुम्हारा फायदा ही हो रहा है, मेरा भी फायदा है, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो जाएगी, चीजें याद हो जाएगी मुझे इजीली, बहुत लंबे टाइम के लिए। सो दैट्स ऑल माय सेल्फी साइड आल्सो आई डू हैव। चलो, तो ऑब्जेक्टिव अब, व्हाई मी ओनली फॉर दिस कोर्स, लाइक तो ऐसा कोर्स बहुत सारे भी तो हैं, मैं ही क्यों होना चाहिए हूँ इस कोर्स के लिए? तो इसका भी आंसर है व्हाई ओनली मी फॉर दिस कोर्स। तो देखो, मैं जेनजी जनरेशन वाला आदमी हूँ। जेनजी जनरेशन मतलब एकदम कूल टाइप, तुमने कॉलेज में देखा होगा राहुल और सचिन, एकदम स्टड टाइप, एकदम जेनजी टाइप। अपना कोई ऐसा फॉर्मल तरीका नहीं है कि वो डिसिप्लिन वाले आदमी हैं। तो तुम्हारी जनरेशन से ही मैं हूँ, लाइक आफ्टर 2000 चेंजी चेंजी को समझ पाता है। सो दैट इज द मोटो, द फर्स्ट रीजन यू शुड join दिस कोर्स just by me. So objective second, Sachin, you want to say anything to me? yes, sir. Your mic is on, so I think that's why I'm asking to you. If you don't want to say, just you can put it on mute. All right. So second objective is that you should join to me. I am your friend. Like you guys can ask me anything, like how to make girlfriend as well. You can ask this also, because I am very familiar with you. You guys are like my friend, right? ये सारी चीजें तुम कहीं नहीं पूछ सकते, पर मैं यहाँ तुम्हें नहीं बताऊंगा हाउ टू मेक द गर्लफ्रेंड। आई एम हियर टू टीच यू soil science. It's I'm giving just an example, like कि इस गर्लफ्रेंड वाले सेंटेंस का सिंपल सा मतलब है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू स्टडी, एंड इन फन वे, लाइक सम अदर थिंग्स एज वेल दैट कैन मेक द क्लासेस वेरी इंटरेस्टिंग। सो शायद तुम किसी टीचर से ये सारी चीजें नहीं पूछ पाओगे इतने फेमिलियर हो गए। अब तुम लोगों ने देखा है मुझसे बातें करी रियल रियल लाइफ में, तो यू नो मी वेरी वेल। सो ठीक है। ऑब्जेक्टिव 3 क्या है ज्वाइन करने का? ड्रामा। क्लासेस बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी, आज वाला ओरिएंटेशन लेक्चर है, मेरे को ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है आई थिंक। सचिन, बोरिंग जा रहा है क्या? No, sir. राहुल, क्या लगता है? आर यू एंजॉइंग और नॉट? लेट मी जस्ट रीड द राहुल कमेंट एज वेल। ओके। राहुल,
ठीक है, राहुल ने बोल दिया, ठीक है तो फिर आगे बढ़ने का, राहुल जो बोलेगा हम वो करेगा। ठीक है चलो। ड्रामा बहुत और रहे यार। ओके भाई, फेमिलियर हो जाऊंगा मैं थोड़े दिन में, ये क्या हो जाता है बीच बीच में, मेरी पीपीटी चली जाती है यार। चलो इसको नीचे कैसे भेजना है, ठीक है हो गया। चलो भाई, किस वाले पेज नंबर पे था, फ्लो ही टूट जाता है यार। नो वरीज एट ऑल, वी वर देयर ऑन द दिस पेज आई थिंक, राइट? ऑलराइट, लेट मी जस्ट पिक टू द माय पेन सी। ठीक है भाई, फोर्थ जो सबसे मेन रीजन आता है तुम्हारा इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो है नॉलेज। नॉलेज इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ टू ज्वाइन दिस कोर्स। अब तुमको पता है यार, सोल साइंस पढ़ी है तो थोड़ा तो पढ़ा ही सकता हूँ मैं तुमको। तो थोड़ा सोइल साइंस आता है तो आई लेट यू नो, आई लेट यू हेल्प इन सोइल साइंस टू मेक यू बेटर देन योर प्रीवियस वर्जन। तो मैं, यूं है कि सोइल का जितना भी नॉलेज मेरे पास है थोड़ा बहुत जो मैं होल्ड करता हूँ, वो सारी आपके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। ऑलराइट सचिन। Yes, sir. ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। अगला पेज क्या बोलता है? चलो, कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन क्या बोला है भाई? चलो पहले हटा देगा। अगर आपको डाउट लगे कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है कि इस कोर्स में, कि मतलब थोड़ा भी डाउट आए दिमाग में, तो सिंपली टेक द टाइम टू कंपेयर दिस फ्री कोर्स विद योर पेड कोर्स। जो भी आपने कोर्स खरीद रखा हो, सॉइल साइंस आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, यू कैन कंपेयर दिस कोर्स। मतलब इसको आप है ना, इस फ्री वाले कोर्स को अपने पेड कोर्स से कंपेयर करके देख लेना। यू विल गेट योर आंसर। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, माई इंटेंशन इज नॉट पोस्ट एंड बेटर द एनी बी टाइटल टू एनी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी इंस्टीट्यूट को मेरा डिमीन करना नहीं है, कि उसको छोटा दिखाना नहीं है या फिर उसके साथ compete करना। नॉट एट ऑल। इस लेक्चर और इस कोर्स का जो इंटेंशन है, वो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करना या फिर उसे नीचे दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स डिजाइन है बस उन लोगों के लिए जो सोइल साइंस में थोड़ा मतलब मस्ती करना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं, सोइल में इंटरेस्टेड है। तो दिस कोर्स इज लाइक everything for them. It's amazing, very amazing. So if you get confusion in between the course like this, why I'm wasting my time? So you can simply pick up the course, watching the course on YouTube and compare with your paid course. You'll get your answer your own. तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। अगर तुमको लगे ना कि क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करके या ये वीडियोस देखे, तो भाई अपने आप अपना आंसर ढूंढ लेना कंपेयर करके, कि फिर तुमको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि मुझे यहाँ से ही क्यों पढ़ना है सोइल साइंस। ठीक है। टेक्निक से ये तो Hmm. ग्लोरीफाई करने की चीजें, लाइक टेक्निक्स, कम्युनिकेशन, कंटेंट, बजट, एंगेजमेंट, ड्यूरेशन, एक्सपर्टीज, भाई ये सारी चीजें कवर हो जाएगी इसमें सिंपली। टेक्निक्स अपने पास है क्योंकि आई नो हाउ टू टीच। टीचर का बेटा जानता है हाउ टू मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑन द पॉइंट है। वी आर एक्सपर्ट इन बोथ द लैंग्वेज। लाइक तुमको हिंदी चाहिए, अपन हिंदी भी बोलता है, अपन इंग्लिश भी बोलता है, मराठी भी बोलता है। मराठी वाला झूठ है, ठीक है, मराठी नहीं आता है। पर इंग्लिश और हिंदी वी कैन गो विद दैट। बोथ द लैंग्वेज आर ऑन द पॉइंट, कंटेंट इज ऑन पॉइंट। तो सब कुछ मतलब एकदम ऑन पॉइंट है। तो दीज आर द रीजंस। अदर कोर्स आप ये सारी चीजें कंपेयर करके देख लेना, जब आप एक दो क्लासेस ले लेंगे तो you'll get realize that what is the difference in this course, why you should join the this course only. You'll get your answer your own. You would not to be the confused anymore. तो आगे चलते हैं। चलो, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज अ, मैंने लिखा हुआ है, फाइंड अ गुरु, फाइंड अ गुरु विद whom तुम्हारी लेह जुड़ जाए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाता हूँ मैं तुमको, है ना। मतलब तुमको एक अपना गुरु ढूंढना पड़ेगा भाई। सिंपल है लाइफ में, एक गुरु ढूंढना पड़ेगा भाई। मैंने भी ढूंढा था अपना गुरु। कोई भी हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड,
फादर, जो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। एनी वन कैन बी, तुम्हारा जूनियर जिसको ज्यादा जाता आता हो, मतलब तुमसे थोड़ा बहुत स्टडी में, ही इज अ बेटर देन यू इन स्टडी। सो तुम्हें एक ऐसा, एनी टीचर यू कैन पिक अप योर बाय योर ओन सेल्फ, लाइक देयर इज अ लॉट्स ऑफ टीचर ऑन यूट्यूब एज वेल। कोई भी, जो टीचर आपको पसंद हो, आईआरआई से कोई हो या फिर आरसीए से कोई हो, कोई से भी कॉलेज से हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। द मेन पॉइंट इज कि उसके साथ तुम्हारी ले जुड़नी चाहिए। उसके साथ ले जुड़ने का मतलब क्या है, कि तुम्हें उसकी बातें समझ में आनी चाहिए। उसकी बातें समझ में आने से मतलब क्या है, वो पढ़ा है और तुमको एकदम दिमाग में छप जाए। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें एक टीचर ढूंढना है या फिर उसके साथ ले जुड़नी है, उसका आंसर ये है। चलो उससे पहले हम राहुल का मैसेज देख लेते हैं। राहुल पाजी कुछ कह रहे हैं। Say he MSCQ. Okay, so he'll say MSCQ. I'll give the answer as well. But later, before ending this class, we'll touch on touch upon on your question as well, Rahul. ठीक है? Uh, let's come here again. कि find a guru with whom लेस जुड़ जाए। मतलब एक ऐसा गुरु ढूंढना है जिसके साथ ले जुड़ जाए। ये बात क्यों बोल रहा हूँ? Why finding gurus is more important for you? गुरु ढूंढना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इज इट इज इट नॉट पॉसिबल टू स्टडी योर ओन? क्या सेल्फ से पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है क्या? हम खुद से नहीं पढ़ सकते क्या सारी चीजें? इज इट रियली हार्ड टू लर्न योर सेल्फ? इतना मुश्किल है क्या खुद से पढ़ना? क्यों हम मतलब दूसरों से ही क्यों पढ़े? ठीक है, तो ऐसा दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई हम क्यों और लोगों को ढूंढे, क्यों गुरु ढूंढे? द आंसर इज हियर। क्या है भाई आंसर? इफ सचिन तेंदुलकर इज देयर टू टीच यू क्रिकेट, देन व्हाई वुड यू लर्न बाय और योर ओन? भाई अगर तुमको क्रिकेट सिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर दिया हुआ है भगवान ने, तो तुम खुद से ही क्यों क्रिकेट सीखना है? तुमको खुद से क्रिकेट सीखने में 10 साल से ज्यादा लग जाएगा, और वही क्रिकेट तुमको सचिन जो है 6 महीने में, 1 साल में सिखा देगा। तो कितना सारा टाइम बच गया भाई। 9 साल। 9 साल तुम्हारा टाइम बच जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ टीचर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुरु। तो फाइंडिंग अ गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सचिन? खुद से क्यों नहीं पढ़ना है, उसका आंसर मिला। खुद से पढ़ने जाएंगे यस तो सर। हमको, खुद से पढ़ने जाएंगे ना तो हमको ढूंढते ही रह जाएंगे। इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना कि यू डोंट नो कितना टाइम लग सकता है। बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। बट इफ समवन इज इफ समवन इज फ्रॉम मास्टर डिग्री, फ्रॉम PhD, so he know well like what to teach, what to consume, everything is sorted in that guy mind. So that's why we have to follow them. That's why we have to find the guru. ये रीजन है हमको क्यों ढूंढना है गुरु, राइट? क्योंकि सचिन तेंदुलकर हमको क्रिकेट सिखा सकता है 1 साल के अंदर। अगर खुद से सीखने जाएंगे तो 10 साल लगेंगे। रिलेट कर लिए सचिन और राहुल? मिला आंसर? यस सर। राहुल समझ में आ रही है चीजें? खुद से भी तो करी जा सकती है ना चीजें। देखो टाइम थोड़ा सा ही बचा है, फिर एंड हो जाएगा यार। मैं कोई और पेड वाला सब्सक्रिप्शन भी लेता हूँ, और वैसे भी पीपीटी खत्म होना है। ऑल द एग्जाम that include solution can be covered in it। जितने भी एग्जाम आप लोग देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम जो आप जिसमें सोइल का कुछ पार्ट आता है, एनी पार्ट, वो सब कुछ कवर हो जाएगा भाई इस कोर्स के अंदर। दिस कोर्स कवर ऑल द एग्जामिनेशन कंटेंट, लाइक ये एडवांस कोर्स है सोइल का, तभी तो इसका नाम है एडवांस सोइल कोर्स। कोई भी GRF, SRF, IBPS, PG, जेट, PET, कोई भी कोर्स हो जिसमें सोइल आती हो, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से, इस वाले कोर्स से, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। So PPT is end here. So let's take the Rahul's question. Why we go with the soil science for MSc? Why we should go?
why we should go with soil science for MSc. देखो राहुल, इसका सिंपल मीनिंग मीनिंग है, देर इज अ फेमस सेंटेंस वी कॉल व्हाट वी आर गुड एट, व्हाट वी आर गुड एट एंड व्हाट वी आर enjoying, what we are enjoying are two different things, two different things. अब इसका मतलब क्या है? हम किसी काम को करने में अच्छे हैं, है ना? किसी काम को करने में अच्छे हैं, और एक दूसरा काम है जिसको करने में हम अच्छे नहीं है। दूसरा काम, ठीक है, दो लिख देता हूँ, सेकेंड डिस्काउंट। दूसरा काम है जिसको करने में हम अच्छे नहीं, पर हमको उस काम को करने में मजा आता है। किसी काम में हम अच्छे हैं, पर उसको उस काम को करने में हमको मजा नहीं आता है, ठीक है? तो ये चीज लिखने का मतलब ये है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। देयर कैन बी द पॉसिबिलिटीज, लाइक आप जेनेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है राहुल, आप एग्रोनॉमी में अच्छे हो सकते हैं, पर आपको उन सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है पढ़ने में, पर आप अच्छे हैं उनमें, अच्छा स्कोर करते हैं। पर आपको सोइल साइंस पढ़ने में मजा आता है, पर आप सोइल साइंस पढ़ने में अच्छे नहीं है। सोइल साइंस पढ़ने में आपको मजा आता है, पर आप सोइल साइंस में अच्छे नहीं है। तो एजेंडा और मोटो इज दैट, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट वी आर इंजॉइंग, किस चीज को, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें मजा आता है, व्हाट वी आर इंजॉइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इंजॉइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर गुड एट। समझ में आ रहा है राहुल? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस चीज में अच्छे हैं हमको वही चीज पिक नहीं करनी,